Apex News, India, Northeast. नमस्ते, मैं हूं दीपिका दे और आप देख रहे हैं मेरे साथ एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। शुरुआत करते हैं वेनेजुएला से, जहां राजधानी कैराकस के नजदीक आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी है। इस आपदा में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स मालवे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी हुई है और अधिकारियों ने मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई है। Đấy, nào queer nè. Mira los delfines, mira, 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 mira. Sí, mira cómo se cayeron todas las paredes del frente. Marico, esto es muy impresionante, mira esto. Ay, Dios mío, la gente. Parece una guerra. Texto, dirección, edificios oficiales. मेघालय सरकार ने साइंटिफिक कोल माइनिंग के नियमों में राहत के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री स्न्योभालंग धर ने कहा कि मौजूदा नियम छोटे खनन ऑपरेटर्स के लिए व्यवहारिक नहीं है। सरकार माइनिंग एरिया की मिनिमम सीमा घटाने और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग करेगी। We had meeting with all the coal trader associations who lead from that coordination committee between all the three regions, Garo Hill, Giant Hills and Khasi regions. And it was a very, very fruitful meetings and positive meeting. And we listened their suggestions and ideas and we accept their presentation also, which is very, very genuine. So they request us with the present scientific mining system is feasible in the state of Meghalaya, which require large area of land. So that is point number one. So we are ready to move to the government of India to request them
to reduce the size of mining area, at least so that our local miners can do minings accordingly. And number two, so we will request the government of India so to give us the permission to grant license from the state level for the small miner, if possible. So this is the discussion. So we are committed and promise to our beloved people. We will move immediately to the government of India. We will request as per request by our coal miner association. Small miner mean maximum 5-6 hectare. That's all. So let us see. Number one, if the government of India exempt allow us to give license from the state level, we will work accordingly. Why the present formula, the present scientific reason is which is related directly with open case, which is not possible at all. And yeah, if it is related with the rat hole, so many system has to follow. We have to look with the other state how it does. Simple as that. So therefore, there is so many systems, so many formulas, so many systems we have to follow. If they allow us, that suppose if government of India grant us a permission, we will sit accordingly with our miners. We will listen from them. Let them suggest accordingly how, because it's a new formula. If they allow us, we will work together. We will work accordingly with them only. You know, as of now, some state, for example, like Goa, for ore mining. So that's we have to see from law what under which section they have allowed. So that's yet to find out. We from the day one we already started. पुणे पुलिस ने 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में उनके मंगेतर और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया है। केतन की मौत शादी से कुछ दिन पहले लोहागढ़ फोर्ट में से गिरने के बाद हुई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि घटना एक सोची समझी साजिश थी और आरोपियों ने पहले से जगह का सर्वे भी किया था। What was initially believed to be a tragic accident at Pune's Lohagarh Fort has now taken a shocking turn. 26-year-old real estate firm director Ketan Vishal Agarwal died after falling nearly 400 feet into a deep gorge at the historic fort on June 18th. At the time, police said he had slipped while taking photographs during an outing with his fiancée amid strong winds. However, after a detailed investigation, police now allege that Agarwal was murdered. On Tuesday, June 23rd, police arrested his fiancée, Sia Goyal, and her alleged lover, 22-year-old Chetan Babulal Chaudhary, accusing them of conspiring to kill him and stage the incident as an accident. According to investigators, Agarwal, a resident of Pune district and director of a family-run real estate business, was set to marry Goyal later this year. Wedding preparations were reportedly already underway, including the booking of a palace in Udaipur for the ceremony. But during the probe, police alleged that Goyal was in a relationship with Chaudhary and was unwilling to marry Agarwal. Investigators claim she viewed her fiancé as an obstacle to that relationship. Police allege that the two then plotted to eliminate Agarwal. As part of the plan, Goyal allegedly took him to Lohagarh Fort under the pretext of an outing, while Chaudhary was called to the location later. The duo are accused of pushing Agarwal into the gorge, causing his death. Following a complaint by Agarwal's father, police have now registered a case of murder and criminal conspiracy against the accused. 18 जून 2026 को मेरा 26 साल का लड़का लोहगढ़ फोर्ट से गिर के देहांत हो गया। हमें जब पता चला तो हमें ये लगा कि वो पैर फिसल के, जैसे हमें सिया गोयल ने बताया था उस हिसाब से पता चला, लेकिन उसके बाद के बिहेवियर से और कुछ सर्कमस्टेंसेस से ये पता शक आने लग गया था कि ये कुछ सीधी सीधी बात है नहीं। माननीय श्री संदीप सिंह जी गिल साहब ने, सुपरिटेंडेंट पुलिस ग्रामीण ने, उन्होंने हमें बहुत मदद की। पूरे उन्होंने ताकत लगा के बहुत जल्दी इसका पूरा केस का तपास निकाल के और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है कि उन्होंने केतन को मार के नीचे फेंका है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि 14/6/2026 को उन्होंने सेम लोहगढ़ किले पे केतन को मारने की सिया ने वापस से पहले प्रयास किया था। उस प्रयास में वो नाकाम हो गई। फिर उन्होंने 18 तारीख को वापस से उसे ले जाके उनके काम को अंजाम दिया। इस मामले में अभी उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, आज कोर्ट में पेश भी करने वाले हैं। और इस मामले में
मेरे हिसाब से सिया गोयल के माँ बाप और भाई ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसकी बुआ भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो मेरा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि वो इन्वेस्टिगेशन पूरी जांच से करें और इसमें और जिसका सहभाग है उन सबको आरोपी करें। Both Goyal and Chaudhary have been arrested, and further investigations are underway to establish the exact sequence of events, gather forensic evidence, and determine whether anyone else was involved in the alleged conspiracy. असम के सिलचर के सोनाचड़ा क्षेत्र में दोलू नदी पर बने नए पुल भारी बारिश के बाद आंशिक रूप से धंस गया है। इस घटना से कई इलाकों का संपर्क प्रभावित हुआ है और छात्रों, यात्रियों और इमरजेंसी सेवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने तुरंत मरम्मत और सरकारी हस्तक्षेप की मांग की है। मेघालय में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बीच निर्वाचन आयोग ने वोटर पात्रता को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक 2005 की वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का आधार होगी। जिन मतदाताओं का नाम 2005 की वोटर लिस्ट में है, उन्हें अतिरिक्त पहचान पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ ब्रेक के बाद। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। Welcome to Greenhaven, Shillong. Hidden among Meghalaya's misty hills, Greenhaven, Shillong invites you to slow down and reconnect. Indulge in luxurious comfort, stunning views, heartfelt hospitality, and the serenity of nature. Discover a stay that's more than a getaway. It's an experience, where every stay feels like coming home. किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके। आप सभी का फिर से स्वागत है। पढ़ते हैं बाकी की खबरों के साथ। पेनिनसुला के सब डिविजनल ऑफिसर ने लाइट लिंकॉट लिंकर डैम सड़क पर निर्माण कार्य के चलते अस्थायी ट्रैफिक डायवर्शन की घोषणा की है। निर्धारित समय के दौरान सड़क बंद रहेगी और यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है। मॉनसून को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है। शिलोंग के लाबान क्षेत्र में आवारा और सामुदायिक पशुओं को जहर दिए जाने के संदेह में पुलिस जांच जारी है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच अधिकारी और पशु कल्याण कार्यकर्ता सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा सके। खासी स्टूडेंट्स यूनियन ने मेघालय सरकार के पूर्व उमलिंग फैसिलिटेशन सेंटर को कमर्शियल फूड कोर्ट में बदलने का प्रस्ताव का विरोध कर दिया है। संगठन का कहना है कि इस केंद्र का मूल उद्देश्य राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों की निगरानी करना था और इसे वही भूमिका निभानी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के केईपेन्योर जिले के याचुली क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण आई फ्लैश फ्लड में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग अब भी लापता हैं। सर्च और रेस्क्यू टीम्स को तैनात किया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। गाड़ी भी कितना गाड़ी ले गया, पूरा गाड़ी ले गया। Lepo
और मेन इफेक्टेड जगह कहाँ में है? यहाँ से जाकर देखिएगा। इतना दूर में एक आदमी नदी का बीच में फंस के बैठा हुआ है। वो देखे तो कम से कम यहाँ से 100 मीटर जैसा अंदर में हो गया। नदी बीच में एक बैठा हुआ है। सुबह से बोल रहा है, सुबह प्लाउड में ले गया था, अभी तक ऐसे ही वहाँ में फंस के बैठ गया। तो यहाँ में ADC भी, वहाँ में NDRF लोग भी, पूरा टीम लोग आके बैठा है। लेकिन वो नाव जब नहीं होगा तो उपाय तो नहीं है। वहाँ में बैठ रहा है, देखिए। ओ ये जगह पे बैठ रहा है। उपाय तो नहीं है। हेलीकॉप्टर का अलावा कुछ उपाय नहीं होगा शायद। ये तो पूरा डिस्ट्रक्शन है ना। नेपको डिजास्टर। So far, it is said 2 persons are missing, yet to be traced. Yeah, inside NEPCO campus, heavy damage. So BKB, a school bus, swept away by flood. The vehicles all destructive damage. We are looking for the lost person. मणिपुर के कांगलातोंगबी में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया जब सुरक्षा बलों ने कुकी नागरिकों की सुरक्षित आवागमन का विरोध कर रहे लोगों को हटाने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया। घटना के बाद राज्य के संघर्ष प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और आवागमन को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है। 기가 하나 방귀 가는 거 한거 해. खबरों में आज के लिए इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News, India, Northeast.